Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, let's begin. Any doubts from exercise 16, the questions which are given for homework? Any doubts? So what we have done so far is rule 1, we have done rule 2, and we have done rule of priority. That's what we have done so far. Rule 1 is the formula is h by 3 into SOP. The Simpson multipliers are 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, that series ending with 1. And all odd numbers. Rule 2 is 3h by 8 into SOP. And the SMs are 133, 233, 233, 233 ending with 1. That's rule 2 for you. सर एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ जी। सर ये क्वेरी थी कि अगर सर n इक्वल टू 10 है सर उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करके कर तो दिया था। नहीं, 10 को तो करना ही नहीं है। 10 को क्यों कर रहे हो? 10 को तो रूल 2 लगेगा। यस सर, रूल नंबर 2 लगेगा सर। हाँ सर। तो 10 को क्यों डिवाइड कर रहे हो? डिवाइड करना तो मैंने अभी आपको डिवाइड करना तो मैंने आपको भी सिखाया ही नहीं है। तो जो चीज मैं क्लास में सिखाई नहीं रहा तो उसमें उस जंगल में क्यों घुस रहे हो? ओके सर लेकिन कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा आंसर में डिफरेंस आ रहा था, वो चल जाएगा सर इसमें? नहीं, डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई यू आर गेटिंग अ डिफरेंस। किस क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है? ठीक है सर। डिफरेंस किसी में भी नहीं आना चाहिए। अभी तक जो भी मैंने कराया उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। रूल 1 all odd numbers. Rule 2 starting with 4. The next will be 10. Next will be 16. Next will be 22. Because बीच में जो +3 था तो जो ऑड वाले +3 हैं वो तो सब चले गए उधर रूल 1 में। करेक्ट? यस सर। इसमें तो वो रूल 1 में चले गए। अब बचे क्या? +6 बचा। तो 4 + 6 10 + 6 16 + 6 22। ये जो सीरीज बन रही है ये रूल 2 की बन रही है। इज इट ओके? सर क्वेश्चन नंबर 4 में सर n इक्वल टू 6 है सर, तो वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा सर? वहाँ तो ब्रेक करना, वो ब्रेक करना पड़ेगा। वो मैं भी कराऊंगा। अभी कराऊंगा मैं आपको। सर उसका आंसर डिफरेंस है वही इसलिए। हाँ अच्छा ओके। रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 n इज इक्वल टू 6 वो मैंने अभी कराना है। आई विल बी डूइंग इट नाउ। वही सर उसको ब्रेक करके किया हुआ था सर। तो हाँ क्वेरी तो मैं अभी हाँ उसको कराऊंगा अभी मैं। आई विल बी डूइंग दैट नाउ। सर क्वेश्चन नंबर 5 में सर टीपीसी एरर है सर, टाइप एरर 18.95 आ रहा है आंसर सर, 8.95 दिया हुआ है। हाँ वो टाइपो है। दैट्स अ टाइपो। दैट इज टीपीसी इज अ टाइपो। रूल 1 से ही करना है क्वेश्चन नंबर 5 को भी, बिकॉज देयर आर 3 3 6 3 9 दिए हुए हैं तो रूल नंबर 1 से करोगे। यस सर। Okay, so let us start. So n equals to 3. Which rule will you use? Odd numbers sir, rule number 1. Rule number 1. n equals to 4. Which rule will you use? Rule number 2. Rule number 2. Rule number 2. n equals 5. Which rule will you use?
Number 1. Rule number 2, 1, 1. Odd numbers. 1, odd number. N equals to 6. No rule. No rule. N equals to 7. Rule number 2 and 1. 1. 1 on priority. N equals to 8. No rule. N equals to 9. Odd numbers. 1. 1. N equals 10. Rule number 2. Rule number 2. N equals 11. Odd numbers. Rule number 1. Rule number 1. N equals 12. No rule. No rule. N equals 13. Odd Sir, numbers. 1. First rule, sir. Rule 1. N equals 14. No rule. N equals 15. Rule 1. 1. N equals 16. Sir, 2. Rule 2. N equals 17. 1. 1. N equals 18. No rule. No rule. That means what I'm trying to say now is मेरी एक सीरीज बन रही है यहाँ पे +2 +4 +2 +4 फिर नेक्स्ट +2 फिर उसके बाद नेक्स्ट +4 and so on so forth. For all such ends, no direct rule, rule 1 or rule 2 applies. एक रूल मेरा लागू नहीं होता है. So for all such ends जहां पे मेरा एक रूल लागू नहीं होता है, we use what is called as a combo rule or a combination of two rules. And the combo will be combo of rule 1 plus rule 2. This will be the combo for all such ends. So now let us take up question number 4. Using this mechanism of combo, my aim will be to use rule 1 first and then rule 2. That will be my aim. So let us come to question number 4. Question number 4. Find the area of a transverse bulkhead 10 meter high whose half breadth, okay, at equal vertical interval. Half breadth at equal vertical interval. तो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं. बल्कहेड है तो हाइट होगी और हाफ ब्रेथ है तो इसका मतलब वन साइड ऑफ द बल्कहेड ओनली विल बी देयर. सो 10 मीटर हाई, सो 10 मीटर की हाइट है. हाफ ब्रेथ एट इक्वल वर्टिकल इंटरवल, दिस इज नोन एज इक्वल वर्टिकल इंटरवल. ऐसे दिस इज नोन एज इक्वल एथॉर्टशिप इंटरवल, वो ऐसे होगा. इक्वल वर्टिकल इंटरवल, so 10, तो इसका मतलब बल्कहेड हमेशा is broad at the top, narrow at the bottom. So 10, then 9.3, then 8.3, then 7.1, then 5.7, and last में 3.8. अब इनको ज्वाइन कर दो. ये बन गया हमारा हाफ बल्कहेड और इसको मैं डबल कर दूंगा तो पूरा बल्कहेड हो जाता है.
तो सबसे पहले तो डायग्राम समझ में आ गया सबको? एनी डाउट्स इन द डायग्राम? नो This is the tank top, so TT. This is the keel. Height is 10 meters. So can you then tell me H? सर 2 आएगा. 10 divided by 6 minus 1. 10 divided by 5 is equal to 2 meters. Okay. मुझे Sir? बल्कहेड, हाँ जी सर ये एट 2 मीटर वर्टिकल इंटरवल, ये तो डायरेक्टली मतलब दे रखा है ना एच. हाँ, इसमें नहीं 2 मीटर वर्टिकल, हाँ 2 सर मीटर मैंने नहीं दिया हुआ, किया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन. नहीं 2 नहीं दिया हुआ. कहाँ दिया हुआ है 2? क्वेश्चन में तो 2 लिखा नहीं है. क्वेश्चन में 10 मीटर हाइट दी हाँ हुई है. हाँ 10 मीटर हाइट है. हाँ सर ठीक है, फिर तो बिल्कुल. इसको एच आपको निकालना पड़ेगा. एंड जनरली क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर एच निकालना ही होगा. इसमें आप इसमें आपको वो कुछ लेंथ क्वेश्चन 100 7 में दिया हुआ है. लेंथ 100 मीटर्स दे देगा डिस्ट्रैक्टर. वो बड़ा कॉमन है. ओके, नाउ the columns. So title of the first column. क्या लिखोगे टाइटल में? Half breadths from top. Correct. You can even write semi-ordinates from top. Same मतलब एक ही है. Half breadths from top. Write it in the same order as that given in the question. Order को मत बदलना. 10, 9.3, 8.3, 7.1, 5.7 and 3.8. Supposing you were given half breadths from bottom, then your title would have been half breadths from bottom. And reverse. Diagram यही रहता. Diagram would have remained the same. खाली title of the first column will change as per the title of the question. Okay. Next column is Simpson multiplier. Now, because you've got 6, so what you will do is first you will try to fill rule 1 always, and the last 4 will be your rule 2. So what do? 1, 4, 1. This becomes a common ordinate. ये common ordinate है. This is your A1. This is your A2. 8.3 is a contributor to both the fellows. 1, 3, 3, 1. ये 8.3 जो है ये कॉमन ऑर्डिनेट है. ये दोनों को कंट्रीब्यूट कर रहा है. A1 को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और A2 को भी कंट्रीब्यूट करेगा. तो ये बन गया A1 और ये बन गया A2. ये समझ में आ गया? सर हमेशा हम पहले रूल 1 से ही चालू करेंगे ना सर? करेक्ट. तो अगर सपोजिंग जैसे इसमें अगर सर 8 हो, अगर सपोजिंग 8 होते तो 1 4 2 4 1 1 3 3 1. सपोजिंग 12 होते, नीचे के 4 को पहले 1 3 3 1 फिट कर दो, ऊपर से लेते हुए आओ 1 4 2 4 2 4 2 4 1. दैट इज व्हाट यू विल डू. पहले आखिरी के 4 हमेशा 1 3 3 1 होंगे. इज दैट ओके? Yes, sir. तो
this will be semi area 1 function. This will be semi area 2 function. इसको मल्टीप्लाई किया, यहां तक मिला मुझे SOP1, और यहां से शुरू होता है और इसका टोटल बनेगा SOP2. इसको अलग अलग कैलकुलेट करो. सेमी एरिया 1 will be H/3 into SOP1. इसको निकालो. सेमी एरिया 2 is 3H/8 into SOP2. इसको निकालो. टोटल सेमी एरिया will be SA1 plus SA2, and therefore total cross sectional area, because उसने पूछा है area of the bulkhead will be twice into total semi area. ये आपको total CSA देगा. This is how you'll do it. Tell me the answers. सर 10 फिर 37.2. कौन सा वाला? मुझे SOP1 दे दो टोटल. सर SOP1 55.5 आ रहा है सर. किसी और का भी आ रहा तो मैच कर ले. SOP2 जरा बता दो. और SOP 50.5 आ रहा है सर. 3.5. ओके. SA1 दे बता दो. एक मिनट सर. $37. 37.0. Yes, sir. Okay. 0.875 हाँ, 37.875. 875. Okay. No, sir, 37.0. अच्छा 37.0. 37.0, 37.8 से दूसरा आ रहा है. 37.875 सर SA2 है. Okay. SA2 is 37.875. Total SA बन गया 37, 74. 74.875. 875. और इसको ट्वाइस कर दो तो बन जाएगा 149 point something. 7.75. 0.75. Okay. 149.77. So my total cross-sectional area of the bulkhead is this much. ठीक है. Is this okay? सर इसमें मेरे को इस फॉर्मूला में डाउट है सर. ये जो 3H/8 किया है ना आपने, ये हम क्रॉस सेक्शनल में यूज करते हैं, एंड H/3 सर वो मतलब लॉन्ग वाटर प्लेन एरिया में यूज नहीं करते सर. इसमें कंफ्यूजन है सर. नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया तुमने. नहीं, बहुत. अरे भाई ऐसे ये डिवीजन क्यों कर दिया तुमने? ये तो तुमने बिल्कुल ही सिम्पसन को तोड़ दिया. कंफ्यूजन है सर इसमें. All the rules that we are doing are open to both
water plane area or cross sectional area? The same methodology, if I give you a water plane area, a fish diagram wala question, you're going to use there also. Same logic. Until rule apply, sir. Rule 1 के लिए apply करना है, rule 2 के लिए Half apply breadth. करना है. तो उसको कैसे यूज करोगे? 6 को कैसे करोगे? And I give it to you from forward. बोलो. सर क्या पूछा सर हमने? Supposing I give you 6 half breadths of a fish diagram measured from forward. ऐसे ही करेंगे सर. जैसे किया है. How will you find out the water plane area? Exactly same सर, ऐसे ही करेंगे. Exactly same ही करोगे. तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि then don't say this. Both the methodology rules are used for both. You can find out either WPA or CSA. CSA में bulkhead है and the water plane area में fish है. Is that okay? ओके सर. सर ये पूछ रहे थे कि जो बनाएंगे टेबल कॉम्बो वाले में, हम लोग सर ऐसे ही बनाएंगे कि हम लोग को अलग अलग बनाना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे बनाओगे जैसे बनाओगे. इतना टाइम ही नहीं है भाई, हमारे को तो टाइम बचाना है इस क्वेश्चन में. ठीक है सर. This is the question where we can save time. Okay? मैं ये क्वेश्चन जब फास्टेस्ट स्पीड पे आप लोग करोगे, you should be able to solve it in 15 मिनट. 15 मिनट में आपका ये क्वेश्चन खत्म होगा. हाँ सर, हो जाए. तो therefore this is your time saver of a question. ये आपका टाइम सेवर है. इसमें जितना भी बचाने टाइम इसी में बचेंगे. तो इसलिए, और ये ओपनिंग बैट्समैन भी है, ये रोहित शर्मा है आपका. ओके सर. तो ये आपका ओपनिंग बैट्समैन बनेगा. तो ये हिट आउट करने वाला है. तो दिस इज व्हाट यू गोना बैंक ऑन. तो इसमें हमें जितने भी पॉसिबल कंक्लूसिव शॉर्टकट्स ले सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम गिवन टू अस लीगली, वो हमने लेने हैं इसमें, ताकि हम जितना टाइम बचा सकें. तो सब मेरा सारा एम इसी पे ही है. ओके. तो A1 A2 सर हम लोग डायरेक्टली ऐसे बस लिख देंगे, मतलब जैसे आपने बनाया हुआ है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और कोई इसमें बस मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. नहीं किसने बोला? 5 नंबर है डायग्राम के. ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा. इतना मत करो. हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है. You'll notice me every question I'll be making a diagram, every question I'll be making a table. वो तो बनना ही बनना है. उसमें कोई वो नहीं है, छूट रियायत. तो अगर मैं आपको इसमें 18 दे दूं, 18 ऑर्डिनेट्स, तो कैसे करोगे? सर वो ये पहले 1331 लिखेंगे नीचे से, बस वही ऊपर की सीक्वेंस बनाएंगे. बस नीचे से शुरू करोगे 1331, आखिरी के 4, मतलब रूल 2 को पहले फिट कर दिया. अब जो मेन वो है उसमें आपने रूल 1 फिट कर दिया. 142 42 424 चलता रहेगा जब तक वो कॉमन बल्कहेड तक नहीं पहुंच जाते. वो सर हमेशा फिट हो जाएगा सर. 4 हटा के वो 1 ऐड हो जाता है उसमें ना, फिर वो ऐड होता है. वो हमेशा वो फिट होगा, ही होगा. इसलिए तो प्लीज रिमेंबर, आखिरी के 4 को पहले फिट कर देना 1331. उसके बाद जो बाकी बचा उसमें रूल 1 फिट होना ही है आपका. So you'll always follow this methodology. Is this okay with everyone? वैसे एमएमडी में से कितने ऑर्डिनेट का आता है, मतलब क्वेश्चन जैसे इन जनरली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 तक जाता है.
ठीक है सर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज्यादा। द आइडिया इज नॉट के आपको थका दो, दैट इज नॉट द आइडिया यस सर। ओके सर। कि बंदे को थका दिया ये 25-30 करता है, वो आइडिया नहीं है। That's not the नॉलेज नॉलेज that's not the aim of the whole thing. So, okay. that means basically rule 1 is greater than rule 2 is greater than rule 3. Rule of priority is applicable also in combo. That means your rule 1 plus 2 will always prevail over rule 2 plus 1. You will never use 2 plus 1. You will always use 1 plus 2. And this will always prevail over 1 plus 3. You will never be using 1 plus 3 also. So any number of ordinates given to you, either rule 1 लगेगा और rule 2 लगेगा और rule 3 लगेगा जिसपे हम अभी आ रहे हैं, और rule 1 plus 2 लगेगा। बस यही पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। कभी भी रूल 2 plus 1 नहीं लगेगा। एग्रीड? इज दिस ओके? सर अगर रूल 1 plus 2 नहीं लग रहा है तो 1 plus 3 लगेगा ना सर, कि नॉट नॉट? अरे नहीं, 1 plus 2 ही लगेगा ना, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खाली कोई ऐसा कोई होगा नहीं जिसमें रूल 1 plus 3 लगेगा, ऐसा कोई भी नहीं आएगा। तो रूल 1, रूल 2 और रूल 3 और रूल 1 plus 2, बस। और कोई कॉम्बो है ही नहीं पॉसिबल, इसमें हमारे सारे ऑर्डिनेट्स कवर हो जाते हैं। That is what I'm trying to say. ठीक है? Is that okay? यस Okay. सर ये बुक में जो पीछे आंसर दिया उसमें यूज कर रखा था रूल 1 and 3। हाँ, वो नहीं करना, हमने कभी भी नहीं करेंगे। We will never use. अभी आप देखोगे, you will see that very shortly. वो पीछे में लिखता रहता है बहुत कुछ, बट हमने वही करना है जो हमारे करंट एमएमडी में अलाउड है। That is okay. Coming to rule 3. And rule 3 is basically when we are trying to find the area between any two consecutive ordinates. So write down one question. Take one question down. Length of a vessel, 100 meters. The half breadth as measured from forward. The half breadth as measured from forward are as follows. 2 meters, 4, 6, 3, 1 meter respectively. ठीक है? Find the following. Find the following. Area between
the first two given semi-ordinates. Area between the first two given semi-ordinates. Second, area between the last two given ordinates. Area between the last two given ordinates. Third, सर फर्स्ट वाले से आपने सेमी बोला था और सेकंड वाले में ऑर्डिनेट्स बोला होना सर. करेक्ट, बिल्कुल ठीक. Third, area between the first three given ordinates. Area between the first three given ordinates. Fourth, area between the second last and third last given semi-ordinates. Area between the second last and third last given semi-ordinates. And the fifth one, water plane area. Water plane area. So this is the question. Okay. Now लास्ट वाला क्या था सर? WPA. WPA. अब सबसे पहले तो H निकालना है. तो H कितना है? How much is H? $25. 25. Okay. अच्छा, फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द फर्स्ट टू गिवन. तो हम किस एरिया की बातें हो रही हैं अभी? किसके बीच का एरिया निकालना है? A1 plus A2. 2 and 4. A1 plus A2. A1 से A2. सर A1 का ना सर? Only A1 सर. ओनली A1. फर्स्ट टू. फर्स्ट टू ऑर्डिनेट्स. फर्स्ट टू कौन से हैं? पहला ये है, ये दूसरा है, ये 2 तीसरा and है, 4 के बीच. ये चौथा, ये पांचवा. 2 और 4 के बीच का चाहिए मुझे एरिया. A1 चाहिए मुझे एरिया. इज दिस ओके विद एवरीवन? ये एरिया की बात हो रही है. That means I'm talking about any two consecutive ordinates. ये दो consecutive हैं, इनके बीच का एरिया चाहिए मुझे. तो रूल 3 लगेगा. रूल 3 लगेगा. रूल 3 का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू H/12 into SOP.
रूल 3 का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू h/12 into SOP. So K for rule 3 becomes equal to 1/12. Simpson's multipliers for rule 3 are 5, 8 and -1. 5 और 8 वहां पे लगेगा जिसका एरिया टू बी फाउंड है, एरिया टू फाइंड, उन दोनों के बीच, और -1 लगेगा अगले वाले में जो नेक्स्ट है. तो अगर मुझे A1 निकालना है तो मेरे सिम्पसन मल्टीप्लायर जो होंगे वो होंगे 5, 8 एंड -1. 5 और 8 वहां पे फिट होगा जहां पे मुझे एरिया ढूंढना है. अगर मुझे A1 ढूंढना है तो 5, 8 -1. अगर मुझे A2 ढूंढना है 5, 8 -1. अगर मुझे A4 ढूंढना है 5, 8 -1. इज दैट ओके? सर इस पूरे रूल में केवल 3 ही मल्टीप्लायर है सर, 5, 8 -1 बस. ओके सर. इस पूरे रूल में खाली 3 ही है. 5 और 8 लगेगा उस वाले पे जिसका मुझे ढूंढना है, और -1 लगेगा नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वाला. तो सर ये रूल हमेशा अप्लाई होगा एक पर्टिकुलर एरिया निकालने के लिए? ये एक रूल अप्लाई होगा खाली एनी 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डिनेट्स के लिए. सर अगर हमें A2 निकालना होता है इसमें सर, अगर A2 निकालना होता तो 5, 8 -1, 5 4 पे लगता. और सर A4 वही फॉरवर्ड की तरफ से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में का कि मुझे ऑर्डिनेट दिया हुआ है. क्योंकि सर, मुझे ये ऑर्डिनेट्स फॉरवर्ड से दिए हुए हैं तो मैं फॉरवर्ड से लगाऊंगा. अगर मुझे इस क्वेश्चन में ये ऑर्डिनेट्स आफ्ट से दिए होते तो मैं आफ्ट से लगाता. सर अगर इसी क्वेश्चन में हमें A4 निकालना होता और फॉरवर्ड से दिए हुए हैं, अगर मुझे A4 दिया हुआ है, A4 ढूंढना है और फॉरवर्ड से दिया हुआ है, तो मैं 5, 8, मेरे पास यहाँ पे -1 लगाने के लिए कुछ है ही नहीं. जी सर. यस सर, यस सर. तो फिर मैं खाली रिवर्स ही जा सकता हूँ. दैट मीन्स एंड सेक्शंस में A1 एंड A4 में आई कैन ओनली गो वन वे, ईदर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट. देयर इज नो अदर वे. बट मिडिल सेक्शंस में A2 A3 में I can go both. I can go right to left, I can go left to right. Yes sir. So how do I solve the ambiguity? I will resolve the ambiguity by basically doing what? I will go in the same order as that given in the question. Yes तो सर sir. A4 के लिए जो 1 है उस पे 5 आएगा, 3 है उस पे 8 आएगा और 6 है उस पे -1 आएगा. मतलब ये है सर. A4 के लिए 5, 8 उल्टा उल्टा. और कोई तरीका ही नहीं है मुझे A4 को निकालने का. There is no other way. तो सर इसका मतलब कि हमेशा जो लास्ट का जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा उसमें हमेशा उल्टा ही अप्लाई होगा ये तो? हमेशा ही. मतलब सर there is a ambiguity in the rules. No, there is no ambiguity. I'm trying to resolve that ambiguity for you. A1 and A4 में कोई ambiguity नहीं है. A1 and A4 में आप एक ही तरीका है जिसका आप 5, 8 -1 लगा सकते हो. Yes sir, got it. So now let us try to solve the first part. So A1 is equal to h/12 so 25/12, 5, 8 -1. 5 is getting multiplied by 2 plus 8 is getting multiplied by 4 -1 is getting multiplied by 6. This is my
कॉलम नंबर 3 ऑफ द टेबल. मेरा एसओपी है ये. Is this understood? What have I done? Yes. Okay. This is my A1. $75 आ रहा है क्या? 75. ठीक है. Is the first part okay with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Moving on to the second part now. Second part कहता है area between the last two given ordinates. तो मुझे सेमी ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो मैं A4 निकालूंगा और उसको डबल कर दूंगा. Is that okay? Yes. A4. सर एक डाउट. हाँ जी बोलो. सर इसमें सर ये जो छोटी सी टेबल बना दी है सर जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में, अब जैसे सेकंड वाले पार्ट में 5 8 -1 रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो इनका भी ऑर्डर बदल जाएगा ना टेबल बनाने के लिए? नहीं, आप अगर टेबल बनाओगे तो आप उसी ऑर्डर में लिख दो, बेशक कोई इशू नहीं है. ओके सर. ओके सर. ओके. खाली सिम्पसन मल्टीप्लायर नीचे से ऊपर जाएंगे आपके. ठीक है. ओके, अंडरस्टूड सर. में यूज दिस शॉर्टकट, दैट इज अलाउड, बिकॉज मैं टाइम सेविंग करना चाहता हूँ. तो 5 into 1 plus 8 into 3 and -1 into 6. इसलिए मैं यहाँ पे साथ साथ में डायग्राम के नीचे में SMSM लिखता जा रहा हूँ. And then बाद में twice into A4 will give me my area of the ordinates, area between the two ordinates. उसको ट्वाइस करना है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया सेमी ऑर्डिनेट है और पूछा रहा है ऑर्डिनेट है. प्लीज रिमेंबर दैट. ये बहुत होता है, कॉमन है. 100 और ट्वाइस कर दिया तो 200. करेक्ट? ट्वाइस करके आ रहा है सर. अच्छा, ट्वाइस करके. ओके, ये 50 है. ठीक है. इज दिस ओके? Is second part okay with everyone? 95.8 आ रहा है. सर 95.8 आ रहा है. हाँ सर, करेक्ट. 95.8 आ रहा है सर टोटल. ट्वाइस करके. करेक्ट सर, ट्वाइस हाँ करके. सर, ट्वाइस करके. ऊपर वाला सर 47.917 आया. 47.916. सर ये जो लास्ट वाला जो हमने लिखा है 5 × 1 + 8 × 3, इसको सर अगर हम किसी भी साइड से लेंगे तो इसका तो एक ही मतलब रहेगा. बिल्कुल. ऐसा तो नहीं है इस साइड से लेते हैं. इट डजंट मैटर. दोनों सही है ना सर? दोनों सही हैं. ओके सर. ओके, अब मैं थर्ड पार्ट पे जा रहा हूँ. अच्छा, थर्ड पार्ट को कैसे करोगे? क्या कहता है? एरिया बिटवीन द फर्स्ट 3. बिटवीन द फर्स्ट 3 मतलब किसका एरिया ढूंढ रहे हो अभी आप? बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? A1 से लेके A2 तक, मतलब 6 तक सर. 2 से लेके 6 तक. 2 से लेके 6 तक जा रहे हो आप. कितने ऑर्डिनेट्स हैं? 3 है. कौन सा रूल यूज करोगे?
सर Rule 1. 1. Rule 1. Rule number 1. Rule number 1. Right? One will take priority over rule 3. Agreed? Yes, sir. So therefore, use 141. Use 141 and get your h by 3. 1, 4, 1. 1 into 2 plus 4 into 4 plus 1 into 6. This is the area bit. अच्छा, ऑर्डिनेट बोला है, सेमी ऑर्डिनेट बोला है क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में ऑर्डिनेट है सर। ऑर्डिनेट है तो ट्वाइस करना पड़ेगा, ट्वाइस 400 sir. 400, इसका मतलब ये 200 है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, एरिया बिटवीन is third part okay with everyone? Is third part okay with everyone? Yes, sir. Okay. Fourth part, area between the second last and third last. किस एरिया की बातें हो रही हैं? A3 की बात हो रही है सर। A3 की बात हो रही है। किस ऑर्डर में लगाओगे? दोनों साइड लगा सकते हैं सर एक्चुअली तो। दोनों साइड लगा सकते हो। अब कैसे सॉल्व करोगे एम्बिग्युइटी को? सर जिस ऑर्डर में जैसे क्वेश्चन में दिया दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में डाल जिस देते हैं। ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑर्डर क्वेश्चन कहां से दिया हुआ है? फॉरवर्ड से सर। फॉरवर्ड से। सो देयरफॉर फॉरवर्ड से लगा दो 5 8 -1. Is that okay? Is that okay? How to resolve the Yes, sir. ambiguity? यस सर। Okay. So लगा दो सब। क्या और ऑर्डिनेट चाहिए, सेमी ऑर्डिनेट चाहिए? क्या पूछ रहा है? सेमी ऑर्डिनेट। सेमी ऑर्डिनेट। A3 चाहिए खाली। h by 12 5 8 -1. 5 gets multiplied with 6. 8 gets multiplied with 3. And -1 gets multiplied with 1. इसको निकाल दिया, बस यही आंसर है। वन 110.417 110.417. Is fourth part okay with everyone? यस सर। सर जी। सर जैसे कोई क्वेश्चन होता है जिसमें अगर जैसे फर्स्ट पार्ट उसका पूछ रहा होता है A1 निकालो, सेकंड पार्ट पूछ रहा होता है A2 निकालो, और थर्ड पार्ट जो दे रखा है फर्स्ट 3 ऑर्डिनेट जो हमारा थर्ड पार्ट है वो, तो हम लोग A1 plus A2 कर देंगे डायरेक्ट, जो निकाला है नहीं, निकालना पड़ेगा पूरा। बिकॉज रूल 1 रूल 3 के प्रायोरिटी में ऊपर जा रहा है। ओके सर। नहीं मतलब सर जो आंसर दोनों को ऐड कर दें तो भी A1 plus A2 ऐसे। हाँ, लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा। अच्छा ओके सर। आंसर डिफरेंट आएगा। आंसर डिफरेंट आएगा। ओके सर। क्योंकि मल्टीप्लायर्स अलग हो रहे हैं और आपका कांस्टेंट अलग हो रहा है, तो वो सब चक्कर है। ओके सर। एंड लास्ट पार्ट, ये आपको आता है करना, लास्ट वाला।
बिकॉज कंप्लीट वाटर एरिया पूछ रहा है तो देयरफॉर ट्वाइस तो करना ही होगा, एंड रूल 1 ही लगेगा, तो h/3 इनटू द SOP. कितना आ रहा है? 716.6. 716.6. ये ट्वाइस करने के बाद, करेक्ट? Yes, sir. Okay. So this is your complete water area. So you got a hang of things ना कि basically करना क्या है, what is the idea behind it, and कैसे वो word का खेल कैसे खेलते हैं question में basically. Is that okay? Yes, sir. All right, let's take a break, and I'll see you in 15 minutes. Okay.